Hello, everyone, and welcome to Champions in the Making, the journey behind the jersey, presented by Enlighten. Today, we are joined by three incredible young sports persons who are proving that age is never a limit and when passion, discipline, and determination come together. Meet Rashi Thakur, a 13-year-old all-round sports enthusiast who began her cricket journey in 2024. In just 3 years, she has already made her mark by getting selected in the Under 15 Girls Summer Trial and is now proudly a part of Mumbai Cricket Association. Along with cricket, Rashi also excels in dodgeball and rollball, where her team achieved runner-up position at the state level and victory at the divisional level. Sehaj Murjani, aged 15, is an international combat sports athlete specializing in kickboxing, boxing, and karate. Starting his journey at the age of 5, Sehaj has represented at state, national, and international championships with remarkable dedication and discipline. With an incredible achievement of 40 gold, 28 silver, and 20 bronze medals, he continues to inspire young athletes through his patience, leadership, and commitment towards balancing sports and academics. Arohi Zafekar is a 15-year-old table tennis player who began her journey at the age of 7. She is currently the district champion for 25-26 and holds the 5th rank in the state. Recently selected to play under the JSW Wasint for the year 26-27. Arohi has also showcased excellence in academics by scoring an outstanding 97.20% in her SSC board examinations. Through this session, we aim to inspire young athletes, students, and even parents by understanding the real journey behind sports. The hard work, sacrifices, failures, motivation, and life lessons that shape the champions. So let's begin. Rashi, you're just 13 and already representing MC in cricket. That's amazing. Tell us a little more about yourself and how your cricket journey began. First of all, thank you so much for inviting me here and giving me an opportunity to speak here. At such a young age, it's very proud moment for me. Even though I've just started my cricket journey, you gave me this opportunity. I'm grateful for that. Thank you so much. And yeah, as I am from a sports background family, my father played basketball at national level. I was attracted to balls from childhood. So I have a basketball, dodgeball, season ball, tennis ball, every kind of ball at my home. So I chose season ball out of them when I went to watch an IPL match in 2023. It was MI versus CSK, and I was inspired by the passion of the cricketers. And yes, the very next day I joined the cricket academy, and from there my cricket journey began. Wow, that's incredible. Sahaj, you have achieved so much at such a young age in combat sports. What inspired you to start kickboxing, boxing, and karate when you were just 5 years old? Thank you so much, everybody, for having me here first. I'm really grateful for this opportunity. Like, इतनी छोटी, इतनी young age में एक podcast में आना is like a very big thing. So I'm thankful to ma'am and to everybody here present. स्पोर्ट्स जर्नी लाइक बहुत पहले स्टार्ट हुई थी अराउंड 4 इयर्स के उधर। तभी मैं सिर्फ कराटे या किक बॉक्सिंग नहीं खेलता था। आई प्लेड डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स, एथलेटिक्स हो गया, आर्चरी हो गया, टाइक्वांडो हो गया। पर फिर सडनली मेरे को उसमें इतना कितना इंटरेस्ट नहीं लगता था, क्योंकि लाइक हम जब छोटे होते हैं हमें क्या करना होता है, सिर्फ मजे करने होते हैं, खेलना होता है, कूदना होता है, दोस्त बनाने होते हैं एंड ऑल दैट। सो बाकी स्पोर्ट्स में मेरे को वो फीलिंग नहीं आती थी, तो मैंने या तो खेला या तो छोड़ दिया, खेल के छोड़ दिया 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर वैसे। फिर अराउंड 5 और व्हेन आई वाज 5.5 ईयर ओल्ड आई जॉइन कराटे। सबसे पहले स्पोर्ट्स कराटे था जो मैंने इतना टाइम तक खेला। मेरी मम्मी ने मेरे को क्लासेस में डाला था एंड वहां पे मेरे को अलग फीलिंग आती थी, लाइक बाकी स्पोर्ट्स से बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। एंड आई थॉट कि हाँ यार, ये कितना इधर कितना मजा आता है, इधर फाइटिंग होती है, किक्स वगैरह है, कितना कूल है ये सब। एंड वहाँ पे मेरे काफी सारे दोस्त भी बन गए एंड वहाँ के कोचेस भी बहुत ऐसे सपोर्टिव थे एंड अच्छे थे, वहाँ पे गेम्स वगैरह भी खिलाते थे। सो दैट बिकेम वन थिंग कि हाँ यार, ये तो बहुत अच्छा है, चलो इसको खेलते हैं। क्योंकि
उस एज पे क्या मोटिवेशन, उस टाइम पे थोड़ी ना मोटिवेशन होता है, उस टाइम पे तो सिर्फ खेलना होता है ना। सो दैट्स व्हाट। Wow, thank you for sharing this. Arohi, balancing table tennis at such a competitive level, along with scoring 97.20% in SSC, is truly inspiring. How did your journey in table tennis begin at the age of 7? Thank you for inviting me here for this podcast at such a young age. So, my table tennis journey started when I was 7, and my cousin sister actually plays table tennis. So, मेरी मम्मी बोली कि तू घर पे इधर इतना टाइम पास करने से अच्छा जो क्लब है near our house, you should go there and try the new sport like table tennis. Your sister also plays. So, when I first joined, I was kind of bored because जब हम ज्वाइन करते हैं तब रैकेट और बॉल में कंट्रोल आने के लिए वो टॉसिंग करवाते हैं 2-3 महीने एंड नॉट यूजुअली मच टेबल प्रैक्टिस सो बट माई कोच यूज टू एनकरेज मी लाइक नहीं तो छोटी है तो कर सकती है आगे जाके देन आई स्टार्टेड टू डेवलप मोर इंटरेस्ट इन इट एंड आई एम ग्लैड आई नेवर लेफ्ट इट Wow, that's inspiring. We often see the medals and achievements, but not the daily effort behind them. Can you walk us through a normal day in your life? Sahaj, how does your daily routine looks like? Okay, so my daily routine is nothing special. I wake up early and I go to school. School is basically almost 8 hours or 8.5 hours, and I come back at around 3 p.m. And after that, I have a break, like rest sometime, and then have my lunch. And उसके बाद मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ, एंड उसके बाद मेरे शाम को ट्रेनिंग सेशंस होते हैं। तो 7 to 10 या 7 to 10:30 मैं उधर ट्रेनिंग सेशंस में ही रहता हूँ। उसके बाद घर आके रेस्ट करके डिनर करता हूँ। उसके बाद ऑलमोस्ट अराउंड 12 or 12:30। यस, आई नो आई स्लीप लेट, बट हो जाता है, वहां पे उतना टाइम बचता नहीं है, तो आई स्लीप थोड़ा सा लेट। सो दैट्स व्हाट, उतना ही है मेरा रूटीन, और कुछ स्पेशल नहीं है। Okay. What about you, Rashi? अभी तो जैसे वेकेशन चल रहे, इट्स वेकेशन गोइंग ऑन, सो आई वेक अप एट 6 a.m. and then I go for MCA practice there for 3 hours. And then I come, I eat, I study there. I study at home, I mean. And then from 4 to 9, I go for practice. And during normal school hours, I go for school in the morning. Then I come at 3, and then I practice 2 to 4 hours daily. Yes. Thank you so much, Rashi. Arohi, how does your day look like? So before this 10th vacation, when I was in 10th, I used to go to school in the morning. Then after I come back, I used to do self-study for like an hour. And then I had tuitions. Then there was, of course, coaching, fitness. But now that there's summer, I go in the morning like at 7 I go for fitness and then there's coaching. फिर हमारा थोड़ा सा ब्रेक होता है 3-4 घंटों का and then again coaching. And on Saturday and Sunday, I go to Vashin for playing with the students of JSW because they have sponsored me. Right. Thank you for sharing. You guys also have to maintain a lot of food discipline, is it? So let us know about it too, please. Rashi. Uh, I don't have a special diet, to be honest, but as a sportsman, you have to follow some protocols. And I, being a non-vegetarian from childhood, I get enough proteins from my diet. So yes, but I avoid oily and packaged food, and I'm away from cold drinks and soft drinks from last 6 months. Yes, that's it. How about you, Sahaj? सेम, मेरा भी ऐसे कोई स्पेशल डाइट तो नहीं है, बट हाँ आई मेक श्योर कि मैं ज़्यादा जंक फूड वगैरह नहीं खाऊं, क्योंकि हमारे स्पोर्ट में ना वेट कैटेगरी होती है। तो आई हैव टू मेंटेन दैट स्पेसिफिक वेट फॉर लाइक हमेशा के लिए, के अलावा और किसी वेट में नहीं कह सकता। सो वो होता है, एंड आई ईट व्हाटएवर माय मॉम मेक्स। सो मेरी मम्मी मेक श्योर करती है कि एक बैलेंस डाइट रहे, जिसमें कार्ब्स, फाइबर्स, प्रोटीन सब इंक्लूडेड रहो। तो मेरे को ताकि कुछ और सप्लीमेंट्स लाइक प्रोटीन शेक वगैरह ना लेना पड़े। बट इफ समटाइम्स हो जाता है ना कि कभी कभी की प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं होता है या कुछ और, तो तभी मैं सप्लीमेंट्स लाइक प्रोटीन शेक्स वगैरह होते हैं तो वो ले लेता हूँ। नथिंग मच। Thank you, Sahaj. Arohi, would you like to share yours?
जब मैंने टेबल टेनिस खेलना शुरू किया तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में इतना परफॉर्मेंस नहीं था ना, पर जब बाद में परफॉर्मेंस बढ़ता गया तो नंबर ऑफ मैचेस इन वन डे स्टार्टेड इंक्रीजिंग, और मेरा एनर्जी लॉस इतना हुआ कि लाइक हम मुझे डाइटिशियन के पास जाना पड़ा। तो उन्होंने ऐसा डाइट दिया था कि तुम्हारे लंच में और डिनर में इक्वल अमाउंट ऑफ कार्ब्स, प्रोटीन एंड फाइबर होना चाहिए, एंड बिफोर प्रैक्टिस यू शुड कंज्यूम कार्ब्स एंड आफ्टर प्रैक्टिस यू शुड कंज्यूम प्रोटीन। Hey Arohi, how did you prepare for SSC boards while continuing sports at such a serious level? That was actually really challenging for me, but I managed it because, well, मैं जब पढ़ाई करती थी तब फुल्ली फोकसली करती थी। मतलब मैं प्रैक्टिस सेशंस के बीच में या फिर टू मैचेस के बीच में पढ़ाई करती थी। और मैंने ये भी सीखा उसमें कि लाइक जितना क्वालिटी में पढ़ाई करूंगी ना वो ज्यादा अच्छा है रादर देन क्वांटिटी। क्योंकि मेरे स्कूल फ्रेंड्स लाइक रोज 3-4 घंटे पढ़ते थे, पर मुझे लाइक मैक्स 2 आवर्स मिलते थे पढ़ाई करने के लिए। तो लाइक मेरा ये भी था ना कि लाइक फ्रेंड्स के साथ भी बाहर जाना है, फिर नेक्स्ट मैच के लिए भी देखना है अपोनेंट कैसे खेल रही है, या फिर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेशंस के लिए भी जाना है। तो इसलिए मुझे जितना टाइम मिलता था ना उतने में ही बहुत अच्छा करने का ट्राई करती थी, ताकि ज्यादा रिवीजन ना लगे। Wow, a lot of hard work. No champion succeeds alone. Who do you give the best credit for your journey so far? Let's start with you, Saj. मेरी जर्नी का सबसे ज़्यादा क्रेडिट मेरे पेरेंट्स को जाता है, क्योंकि वही हमेशा मेरे सारे टूर्नामेंट्स पे आते हैं और वही मेरे को हमेशा सपोर्ट करते हैं। मेरी डाइट प्लान वगैरह सब वही देखते हैं। स्पेशली मेरी मम्मी, वो हमेशा मेरे टूर्नामेंट में मेक श्योर करती है कि रहे साथ में, कहीं पे भी हो टूर्नामेंट, मुंबई के कोई भी पार्ट होने दो, अहमदनगर, पुणे, हमेशा साथ में रहती है। एंड फिर सेकेंडली मेरे कोचेज और मेरे फ्रेंड्स। कोचेज मोर, क्योंकि मेरे कोचेस ने ही मेरे को जो हूँ मैं आज वो बनाया है। मेरे को एक छोटे से लेवल से बहुत ऊपर तक लेकर आए। सो आई एम ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरी वन हु हैज कोच्ड मी एवर, एंड आई एम थैंकफुल टू देम ऑल। Absolutely. Rashi, you? I totally agree with what Sahaj said. Actually, मेरा भी सबसे बड़ा क्रेडिट मेरे पेरेंट्स को ही जाता है, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो मैं ये जर्नी कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाती। एंड द सपोर्ट दैट दे गिव, इट मेक्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्ले दैट स्पोर्ट विद दैट एफर्ट, एंड इट बिकम्स माई, वो ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि नहीं, अभी करके दिखाना है, कि अगर मेरे मम्मी पापा मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, सो आई हैव टू डू दैट। सो यस, एंड कोचेस तो दे मेक अस, दे बिल्ट अस। सो या, माय क्रेडिट गोज टू माय पेरेंट्स एंड कोचेस। So true. Arohi, what would you say? So the biggest credit, of course, will go to my parents. They have always supported me, motivated me. उन्होंने कभी नहीं ऐसा बोला कि लाइक ये मैच तो क्यों नहीं जीती एंड ऑल। एंड ऑफ कोर्स कोचेस ने भी ऐसा ही कभी नहीं बोला कि लाइक ये ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था। They always try to correct my mistakes and help me throughout my journey. And of course, my school friends were also a part of very important part, because they always hyped me up like, yeah, अगली बार तो तू कर ही लेगी, हमें पता है। Yes, truly. So deep gratitude to our parents, coaches, and friends. Thank you all for sharing. One thing many students struggle with is balancing sports and studies. With you, it seems managed. Please share your secret with all of us. So, what's your secret, Sahaj? मेरे से कोई स्टडीज लेके सीक्रेट तो नहीं है। तो क्या होता है ना, बेसिकली अगर तुम स्पोर्ट्स कर रहे हो एंड बहुत टाइम से कर रहे हो, तो तुम्हारा कंसंट्रेशन लेवल एंड डिसिप्लिन खुद ही बिल्ड हो जाता है। तो अगर तुम कोई भी ऐसे टॉपिक पढ़ते हो तो तुम्हें वो समझ आने लगता है, अगर तुम अच्छे से कंसंट्रेट करके पढ़ो तो। एंड मैं भी कोई ट्यूशन या क्लासेस नहीं जाता एक्स्ट्रा पढ़ाई के लिए। जो स्कूल में सिखाते हैं हमारी टीचर्स, एंड वो बहुत अच्छा सिखाते हैं। सो मेरे को वो बहुत अच्छे से समझ आता है एंड वो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना इजी होता है। सो एंड आई मेक श्योर कि हाँ, मेरे को पता है अगर मेरा कोई टूर्नामेंट है तो मेरी क्लासेस मिस होंगे। तो क्या बोलते हैं, मैं टीचर से पूछ लेता हूँ कि क्या टॉपिक है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट आएगा। सो वो हमेशा मेरी हेल्प करते हैं, एंड विच लाइक हेल्प्स मी अलॉट। एंड सेकेंडली, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है फिर भी, तो मेरी मम्मी मम्मी सिखा देती है।
तो ऐसा कुछ मेरे को करना नहीं पड़ता पढ़ाई के लिए एक्स्ट्रा, एंड कुछ ऐसा सीक्रेट भी नहीं है। Thank you, Sahaj. What about you, Rashi? बेसिकली मैं बोलूँगी मैं भी कोई ट्यूशन्स नहीं जाती हूँ। आई डू सेल्फ स्टडी। मैं बोलूँगी कि यू मेक अ प्लानर एंड फॉलो इट, क्योंकि अगर आप 9th ग्रेड से ऊपर हो तो यू हैव टू एटलीस्ट स्टडी फॉर 2 hours और मिनिमम 1 hour। तो आई गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू माई स्टडीज, बिकॉज क्या होता है, इफ़ यू गेट सम इंजरी इन द क्रिकेट, अ सीवियर इंजरी, तो आपका जो स्पोर्ट्स का करियर होता है वो उधर ही फिनिश हो जाता है। मतलब आप वो आगे सक्सीड नहीं कर सकते। सो यू शुड हैव सम अदर प्लान than sports, and also you can upgrade your sports through your qualifications. So yeah, that's the most biggest point. That's it. Very true, Rashi. What about you, Arohi? So, of course, it was challenging. Till 9th में ट्यूशन नहीं था, तो मैं खुद ही पढ़ाई करके हो जाता था। पर जब मैं 10th में गई, तो my mom asked me like, you have to join your a tuition, or else how are you gonna study with all those matters? So I agreed and like I went to tuition and also self study. मतलब उधर जाके मुझे थोड़ा डिसिप्लिन आया कि नहीं, ये टाइम पे करना है, इसकी टेस्ट है। इट वाज यूजफुल। एंड मैं बोलती हूँ कि लाइक अगर तुम्हें क्वालिटी स्टडी करना है, तो लाइक इट कैन यू कैन यूज एनी वियर्ड मेथड। लाइक आप खुद के नोट्स निकाल सकते हो, या फिर मैंने इतने सारे वियर्ड टेक्निक्स यूज करके लाइक आज जो मेरे ये मार्क्स है ना, वो मतलब क्वालिटी टाइम स्पेंड किया मैंने, लाइक स्टडी करते हैं, इसलिए ही है। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक ये ऐसा लोग मेरे फ्रेंड्स ये कर रहे हैं इसलिए मुझे भी यही करना है। आप आपके स्टडी मेथड से भी जल्दी सीख सकते हो। एंड ऑफ कोर्स एज राशि सेड कि हमें एक सेकंड ऑप्शन तो रखना ही चाहिए, इसलिए उसका भी मोटिवेशन था, नहीं अच्छे मार्क्स लाने हैं। नाउ मैं अब कॉमर्स ले रही हूँ सोमया में। Wow. So we all know the secret. It means sports is not a distraction. In fact, it helps us do better. Now, what is that one thing which motivates you to wake up every morning and continue training even on difficult days? Rashi, please share. Yeah, I wake up because I'm loyal to my game, towards my game. And yes, I take time, but I do wake up. And then it's a universal truth that every player, every sportsman, woman has to do hard work to achieve something big. And also my parents' efforts encourages me, motivates me to perform and to wake up early in the morning also. So, how do you manage a difficult days ahead? बेसिकली अगर कभी मेरे को ऐसा लगता है कि आज नहीं यार, आज क्लास जाने का मूड नहीं है या वगैरह वगैरह, तो आई लुक बैक एट द टाइम कि किधर जहाँ पे मैं हारा था। लाइक बहुत ऐसे बहुत टाइम होता है ना, कि बहुत बार होता है कि तुम बहुत गंदे तरीके से हारते हो कोई भी मैच। तो आई लुक बैक एट दोज डेज, एंड फिर मैं सोचता हूँ कि मेरे मम्मी पापा इतनी मेहनत करते हैं, इतना हार्ड वर्क डालते हैं अब मेरे स्पोर्ट्स के अंदर, और मैं ऐसे क्लासेस स्किप करूंगा। तो उससे खुद पे खुद मोटिवेशन आ जाता है कि नहीं यार, अभी तक क्लासेस जाना है। एंड उसके बाद मेरा खुद का फैक्टर भी है कि अगर मैं कोई टूर्नामेंट वगैरह हार के आता हूँ, तो मेरे को बहुत बुरा लगता है कि मैं जीत जाता था यार, एक पॉइंट था ये वो। तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि उस पॉइंट में मैं और हार्ड वर्क करूँ। तो फिर अगर मेरे को ऐसा लगता है कि आज नहीं जाना है, तो मैं से वही खुद को बोलता हूँ कि जा, तेरे को जाना पड़ेगा, तेरे को जीतना है ना आगे, तो तेरे को जाना पड़ेगा ही, और कोई ऑप्शन नहीं, वरना वापस हार के आएगा। What about you, Arohi? So, of course, there are many difficult days in a sports person's life, but हमें discipline रखना चाहिए कि like as the both of them said कि हमें हमारे sports के लिए loyal रहना चाहिए। अगर हमें performance चाहिए, तो हमें उतना practice करना होगा। So in table tennis, before going to any session and after coming from session, we write a diary. उसमें सारे goals वगैरह लिखे, तो वो याद करके ऐसा लगता है नहीं, अगर ये achieve करना है तो जाना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। एंड आफ्टर मैच आई शुड नॉट रिग्रेट कि नहीं, शायद उस दिन मैंने और 2-3 सर्विसेज प्रैक्टिस किए होते तो शायद ये मैच तो थोड़ा और अच्छा खेल पाती। ऐसा मुझे रिग्रेट नहीं करना है। सो दैट इज ऑल्सो लाइक, रिग्रेट नहीं करना है तो अभी वर्क हार्ड करना पड़ेगा। So true.
So, do you follow any routine, mindset, practice, or self talk before competitions? Arohi? So before any match, of course, we do warm up, and before 5 minutes, 5, 10 minutes, I sit for meditation. We meditate, like all of my friends and I, table tennis friends, we meditate. So हमारे सारे thoughts, like जो कुछ हमने पहले बोला, ये वो सब निकाल देते हैं, और हमें क्या क्या सीखा है ड्यूरिंग मैचेस या फिर प्रैक्टिस में, या और क्या क्या खेल सकते हैं, क्या क्या करना है, वो सोचते हैं। और सेल्फ टॉक भी करते हैं, जैसे कि या यू कैन डू दिस, यू गॉट दिस, या फिर ठीक है ना, अच्छा होगा तो भी क्या, तू इतना बुरा थोड़ी ना खेलते, तू भी तो अच्छा खेलती है। ऐसा सेल्फ टॉक करके तो मेंटली माइंड प्रिपेयर करते हम जाते हैं। Wow, very interesting. Rashi, Yeah, can you please repeat the question actually? do you follow any routine, mindset, practice, or self talk before competition? या मतलब जब हमारे मैचेस होते हैं तो वार्म अप के टाइम पे तो टॉस होता है तो टाइम नहीं मिलता है. सो व्हाट वी डू इज व्हेन आई go out of my house, I go in front of mirror and I say some positive lines to motivate myself. Like, yes, the universe is on my side. I'll win the match. Yes, I can perform better even though the opponent is too strong. And yes, it motivates me and I do perform good in matches. Sahaj? ओके, ऐसा मेरा एक स्पेसिफिक रूटीन तो रहता है कि मेरी जब वेट कैटेगरी अनाउंस हो रही रहती है ना, तो जब सारे स्टूडेंट्स एक साथ लाइन में आते हैं, सो मैं वहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ हो जाती है एंड बहुत शोर होता है, तो मैं एक किसी शांत से कॉर्नर में चले जाता हूँ एंड वहाँ पे म्यूजिक सुनता हूँ अपना हेडफोन्स डाल के, एंड वहाँ पे ही वार्म अप करता हूँ. तो उससे ना जितनी भी एंशियसनेस वगैरह लगती है ना मैच से पहले कि यार इतने ज्यादा लोग हैं, अब क्या होगा, कितने मैचेस खेलने पड़ेंगे, क्या बता, सो वो पूरी चली जाती है. एंड वो एक ऐसा रूटीन है कि मैं मेक श्योर करता हूँ कि हमेशा एंड हमेशा फॉलो करूँ, क्योंकि मैं इतना टाइम हो गया खेलते हुए, पर मैं ये बोल सकता हूँ कि कितने भी मैचेस खेल लो तुम्हें हमेशा एंशियस लगेगा. ऐसा होता नहीं है कि तुम्हें एंशियस ना लगे. तो वो करता हूँ. एंड सेल्फ टॉक भी यस मैं करता हूँ कि हाँ तेरे को जीत कर आना पड़ेगा, आज तू जीत जाएगा, कोई नहीं, इजी अपोनेंट है, कुछ नहीं होता, तू अच्छा प्लेयर है, इतने टाइम से कर रहा है. तो दैट्स ऑल. That's cool. This takes me to my next question. How do you handle failures, losses, or bad performances? Rashi, would you like to go first? या फेलियर तो अभी कुछ इतना बड़ा हुआ नहीं है मेरे साथ. आई जस्ट स्टार्टेड माई क्रिकेट जर्नी, बट येस, आई वेंट टू डू selections of talent hunt. I was underage at that time. I was 12 and it was my second year. अंदर क्या होता है, 4 राउंड्स रहते हैं उधर, और यू हैव टू क्वालिफाई वन बाय वन एंड दे डिक्रीज द गर्ल्स. लाइक 50 है तो दे डू 30, देन 15, ऐसे होते जाते हैं. सो लाइक फर्स्ट राउंड आई गिव माई फर्स्ट राउंड, दे सेलेक्ट आस्क माई नेम, एंड देन आफ्टर वो जब रिजल्ट अनाउंस कर रहे थे, लाइक यू आर नॉट सिलेक्टेड. तो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी ऑफ माय जर्नी. मुझे बहुत बुरा लगा था उस टाइम कि अरे पहले ही राउंड में मैं सिलेक्ट नहीं हो गई. लाइक मुझे दिखाना था कि अभी समर कैंप आएगा तो आई हैव टू सिलेक्ट. मुझे दिखाना है कि हाँ, मुझ में भी पोटेंशियल है. तो यस, दिस वाज माय फर्स्ट समर ट्रायल्स एंड आई गॉट सिलेक्टेड. Wow, thank you so much for sharing. Arohi? तो कभी मैं कोई मैच हारती हूँ तो लाइक मेरे माइंड में दो थॉट्स होते हैं, लाइक वन पर्सन इन माय माइंड सेज लाइक नहीं तूने अच्छा किया, लास्ट टाइम से तो अच्छा खेली इस अपोनेंट से, बट द सेकंड पर्सन इन माय माइंड सेज लाइक नो, तो और अच्छा खेल सकती थी, मे बी ये पॉइंट में मिस्टेक हुआ, मे बी ये इजी स्मैश तूने मिस किया. बट देन टू क्लियर थिंग्स अप, मैं गाने सुनती हूँ, कभी कभी सो जाती हूँ, और उसके बाद जब मेरा माइंड स्टेबल हो जाता है तब मैं ऑफ कोर्स अगेन प्रैक्टिस शुरुआत करती हूँ, जो मेरे मिस्टेक्स है वो रेक्टिफाई करने का ट्राई करती हूँ, और थिंक करती हूँ कि नहीं, ये ऐसा एक फेलियर नहीं है, ये जस्ट मेरे मिस्टेक्स बताने के लिए और एक मैच था, देयर इज समथिंग आई हैव लर्नड. Very true. Sahaj, please share yours as well. ऐसे बहुत सारे इंस्टांसेस हुए कि जहाँ पे मैं बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में सेमीफाइनल्स, फाइनल्स, क्वार्टर फाइनल्स में हारा हूँ. एंड उसके बाद मैं बहुत लो हो जाता हूँ, लिटरली बहुत लो. बहुत बार आई हैव इवन क्राइड वॉशरूम में जाके अकेले.
तो उससे कोप अप करने के लिए मैं पहले तो शांत करता हूँ, खुद को काम करता हूँ कि हार गया तो अभी रो के क्या फायदा, और ट्रेन करना चाहिए था ना। एंड उसके बाद मैं बाहर आता हूँ। सब मेरे दोस्त वगैरह वहाँ पे जो टीममेट्स वगैरह रहते हैं, टीम वाले, वो भी बहुत सपोर्टिव रहते हैं, वो भी काम डाउन करवाते हैं। वो ऐसा होता है ना कि अगर दोस्तों के साथ हो तो तुम्हारा मूड खुद ही लाइट हो जाता है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है मेरे वहाँ पे, टीममेट्स एंड फ्रेंड्स जो भी रहते हैं। एंड उसके बाद मैं मेक श्योर करता हूँ कि हाँ, जहाँ पे भी मैंने मिस्टेक्स की है उसको रेक्टिफाई करूँ एंड उस मिस्टेक पे काम करूँ, कि अगर ये यहाँ पे काउंटर करना चाहिए, यहाँ पे आगे बढ़ के खेलना चाहिए। तो वो मैं अपने खुद के वीडियोस में देखता हूँ एंड वहां से मिस्टेक निकाल के उन पे काम करता हूँ। दैट्स इंस्पायरिंग। अब थोड़ा माहौल लाइट करते हैं, टू मच सीरियस टॉक्स है ना। So sports journeys are serious but also full of funny memories. So what's the funniest thing or an embarrassing or unforgettable sports moment that has happened to you during your practice session or a competition? Rashi, let's listen to yours first. Actually, it was my fourth match, and I was on strike, and the umpire announced it's bowler left arm around the wicket, left arm orthodox to you. So it means that a bowler, left-handed bowler is gonna bowl you. He said left arm orthodox. Normally कैसे बोलते हैं, right arm, left arm spin, leg spin, off spin. So like I was confused कि orthodox क्या होता है. तो मेरी नॉन स्ट्राइकर टीममेट के पास मैं गई, एंड लाइक जल्दी बता क्या होता है ये, टप्पा पड़ के बॉल अंदर आएगा कि बाहर जाएगा. लाइक अरे शी लाफ्ड एट फर्स्ट, देन शी सेड अरे अंदर आएगा, तेरे को अंदर आएगा. लाइक पहला बॉल अंदर आया, और दूसरी बॉल पे मैं कोच के पास गई. कोच वाज लाइक ऑन, ही वाज अ स्क्वायर लेग अंपायर, इट वाज अ प्रैक्टिस मैच. मैं गई, सर क्या मतलब क्या होता है ये, मुझे कुछ आइडिया है ही नहीं. सर तू खेल, फिर मैं तुझे बताता हूँ, तू पहले खेल ले. लाइक दिस वाज माय फनी मोमेंट, एंड इट वाज ट्रूली वेरी एम्बैरेसिंग. Arohi, we want to listen next to you. सो मैंने जब टेबल टेनिस ज्वाइन किया तो मैं आपको 7 साल की थी. तो आई वॉज वेरी शाय. मतलब मुझे कुछ बोलना ही नहीं था किसी से. सो मैंने ज्वाइन, मेरे कोच ने एक फर्स्ट डे पे ऐसा मुझे राइट हैंड से शैडो दिखाया, से टॉसिंग करना दिखाया. एंड देन माय सिस्टर सेड टू माय मॉम कि लाइक आई वांट टू सी हाउ शी इज डूइंग. So my sister came and then she saw that I was doing everything from right hand. Then she told my coach that I was left-handed. And he was like, बेटा तुमने क्यों नहीं बताया मुझे? And I was like, I was very shy. I couldn't speak anything in front of him. Sahaj, you are next. ऐसे एक फनी मोमेंट मेरे सेशन में बहुत बार होता है, प्रैक्टिस सेशन में। लाइक हमारे वीक में या फिर 2 वीक में हर बार ना एक स्ट्रेचिंग सेशन होता है। मतलब बेसिकली वहाँ पे हमारे लोअर बॉडी की स्ट्रेचिंग होती है। तो वो ना बहुत ऐसे ब्रूटल स्ट्रेचिंग होती है, लाइक तुम्हें सीधा ऐसे पुश कर देंगे नीचे ताकि तुम पूरे स्प्लिट की पोजीशन में आ जाओ। तो ऐसे बहुत बार हुआ है कि आई हैव लिटरली स्क्रीम, इतने चिल्लाया हूँ ना वहाँ पे, एंड बच्चों की तरह चिल्लाया हूँ। तो वो बहुत ऐसा फनी मोमेंट होता है। एंड मैं अकेला ही नहीं हूँ, सब लिटरली सब। अभी मैं ब्लैक बेल्ट भी बन गया हूँ पर फिर भी चिल्लाता हूँ, एंड वहाँ पे बच्चे सब हंसते हैं। तो वो थोड़ा एम्बैरेसिंग भी है, थोड़ा फनी भी है। Yeah. Super stories. Thank you for sharing. Let's move on. Now, I want to ask each one of you, if you could go back and speak to your younger self when you first started sports, what would you say? Sahaj, would you like to go first? ओके। तो अगर मैं अभी टाइम में पीछे जाऊँ एंड अपने खुद सेल्फ को बोलूँ कि जब भी मैंने कराटे स्टार्ट किया था, तो मैं सिर्फ उसको दो ही चीजें बोलूंगा। एक है कि तू अपने ड्रीम से कभी गिव अप मत करना, एंड कराटे, किक बॉक्सिंग, बॉक्सिंग में कभी गिव अप मत करना, हमेशा कंटिन्यू रखना, नो मैटर कोई कोई कुछ भी बोले। एंड दूसरा ये है कि तू फ्यूचर में बहुत इनकंसिस्टेंट होगा। तो तुम खुद से मेक श्योर करना कि वो ब्रेक्स एंड लीव्स ना हो, क्योंकि बहुत सारी इनकंसिस्टेंसी की वजह से मेरे बहुत सारे टूर्नामेंट्स गए हैं, हाथ से गए हैं, जो मैं जीत सकता था अगर मैं थोड़ा सा और प्रैक्टिस करता। तो मैं उसको यही बोलूंगा कि अपना हम हमेशा अपना 100% दे, गिव अप मत करना, एंड प्रैक्टिस रेगुलर रख, एंड हमेशा मम्मी पापा की सुनना। Amazing. Arohi, you're next.
So अगर मैं like I meet to my younger self, I would like to tell her that कि start early and be patient. Like मैं बचपन में बहुत प्रोक्रास्टिनेट करती थी, मुझे बहुत चीजें पसंद थी, ड्राइंग पसंद थी, मुझे और कुछ कुछ सीखना था, लाइक सिंथेसाइजर बजाना सीखना था, पर आई वांट टू टेल माय यंगर सेल्फ दैट कि नहीं, तुझे आगे जाके इतना पसंद आने वाला है, आई थिंक यू शुड फोकस फ्रॉम अर्ली ऑन एंड बी पेशेंट। तो स्टार्टिंग के मैचेस हारने वाली है, पर आगे जाके तुझे और अच्छी चीजें मिलने वाली है, तो अच्छा और करने वाली है। एंड आई वांट टू टेल माय यंगर सेल्फ वन मोर थिंग कि लाइक कोच बोले ये करना है वो करना है इसलिए मत कर, तुझे गेम में अलग ही इंटरेस्ट है इसलिए कर। सो आई वुड लाइक टू इम्प्रूव मोर। Super. Rashi, what about you? यस, मीन्स मुझे तो बहुत अच्छा लगा था जब मैंने क्रिकेट ज्वाइन किया था। लाइक इट मोटिवेट्स मी सो मच। सो एक्चुअली कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन? मुझे सच में सुनाई नहीं दिया था, यहाँ पे नेटवर्क का इशू हुआ था। Okay. If you could go back and speak to your younger self when you first started sports, what would you say? या तो क्रिकेट इज एज कैटेगरी गेम, तो वहाँ पे अंडर 15, अंडर 17 और अंडर 19 होता है। सो आई जो मैं अंडर 13, मतलब मैं जो 13 की एज में रेडी हुई हूँ, आई वुड लाइक टू टेल माई यंगर सेल्फ कि तू वो 1 साल कम करके 12 की एज में ही रेडी हो सकती थी। मतलब तूने जो टाइम पास किया था 1 साल, अरे हाँ मिस करते हैं, चलो क्या होता है, क्लास सो जाते हैं दोपहर को, कुछ नहीं होता, वो सब थोड़ा अपना इंटेंट दिखाना था क्रिकेट की तरफ। तो यस, वो 1 साल मुझे बचाना है और मुझे अर्ली रेडी होना था क्रिकेट के लिए। And now we come to my most favorite part of the session, a rapid fire round. So let's start with you only, Rashi. या So batting or bowling? बैटिंग। Virat Kohli or Smriti Mandhana? ओह माय गॉड, वेरी टफ क्वेश्चन। It's rapid fire, come on. विराट कोहली। Okay. Early morning practice or evening nets? इवनिंग नाइट्स। Match day excitement or result announcement excitement? रिजल्ट अनाउंसमेंट एक्साइटमेंट। First name that comes to your mind when you hear never give up? इट्स रोहित शर्मा। Fine. Next is your turn, Arohi. I'm ready. Yeah. Forehand shot or backhand shot? Forehand shot. Just a minute. Sports day or exam result day? Sports day. Favorite thing after winning a match? Food or sleep? Favorite food after winning a match? Okay. Practice session or tournament day? Tournament day. First name that comes to your mind when you hear discipline? My coach. Sehaj, your turn now. Okay. Kickboxing or karate? Karate. Strength or speed? Speed. Training day or competition day? Training day. Music before matches or complete silence? Music before matches. First name that comes to your mind when you hear champion? Champion. Um, It's rapid fire, come on. in the future. Wow. Believe me, ये तो सबका फेवरेट पार्ट होगा पूरे पॉडकास्ट का. Now, this question is for all again. What advice would you like to give to aspiring students, young athletes, and their parents? Sehaj, would you share first? Okay. तो पहला मैसेज मैं पेरेंट्स को चाहूंगा वो ये है कि कभी भी अपने बच्चों को मैं तो बोलता हूँ ना कि कॉलर ना जहाँ पे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, कि अगर किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है तो वो ऑफकोर्स नहीं करेगा, तो उनसे पहले Just a बात minute. करो, पूछो Sorry, कि sorry to interrupt. Sahaj, your voice is cracking. Can you start from the beginning? हाँ. ओके। तो मेरा पहला मैसेज है पेरेंट्स को, तो मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगा कि जो तुम्हारा बच्चे को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है वो ही खिलाओ उसको,
उनसे बात करो, उनसे पूछो कि क्या खेलना है, देखो तुझे क्या बनना है, एंड उसके हिसाब से खिलाओ। क्योंकि अगर किसी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है तो वो खेलेगा नहीं। कितना भी खेले वो या तो जीतेगा नहीं, या तो वो बहुत जल्दी गिव अप कर देगा। एंड दूसरा है कि अपने बच्चे में हमेशा ये रखो, बिलीव रखो कि हाँ आज नहीं तो कल सही, आज नहीं जीता है कल जीतेगा, बाद में जीतेगा। एंड उनको कभी डीमोटिवेट करो मत कि क्या फायदा यार तेरा इतने टाइम से खेलने का, जीत के तो आता नहीं है, ये वो इतने पैसे वेस्ट कर रहे हैं हम तेरे पे, ये कभी मत करना। एंड हमेशा उनको सपोर्ट करना उनके हार्ड टाइम पे, कि हमेशा कि उनके टूर्नामेंट में जाना साथ में, उनको बैक करना हमेशा। एंड दूसरा, जो न्यू एथलीट्स या फिर जो लोग नया स्पोर्ट स्टार्ट कर रहे हैं, उनको यही है कि चूज करो कि तुम्हें क्या करना है। मतलब किसी की सुनना मत कभी भी। अ, तुम ही हो जो मैटर करता है। तो अगर तुम्हें क्रिकेट खेलना है तो तुम क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलना है तो फुटबॉल खेलो, और कोई स्पोर्ट्स में या कोई फील्ड में मत जाओ। एंड दूसरा मैसेज यही है कि अगर तुमने अभी स्टार्ट कर दिया है तो अभी गिव अप मत करना। अगर अभी स्टार्ट किए तो उसके टॉप तक जाओ, उसमें जीत कर आओ, खुद को प्राउड करो, अपने पेरेंट्स को प्राउड करो। एंड गिव अप मत करो अपनी ड्रीम्स पे, एंड अपनी हमेशा होप्स अलाइव रखो कि अगर आज हारे तो कुछ नहीं होता, बहुत हारते हैं। एंड वो जो हार होती है ना, उससे सीखना चाहिए कि हाँ इधर हार रहे हैं हम, इधर हमारे पॉइंट्स लूज हो रहे हैं, इधर हमारा ये हो रहा है। तो वो मेक श्योर करना कि तुम अपनी हार से सीखो, एंड गिव अप मत करो, दैट्स ऑल। Thank you, Sahej, for sharing. Rashi, I'll say to students that identify your own skill. अपना स्किल आइडेंटिफाई करो, उस पे काम करो और उसमें कुछ बड़ा करो. And I'll tell parents that every child, every player and sportsman learn from their experiences. और experience बहुत ज़रूरी होता है किसी भी sport में. And if you will be patient, your child will be patient. So be supportive, don't pressurize, be calm with them और उन्हें chance दो, वो experience से ही सीखेंगे. That's it. Or every parent says for their child's well-being only. thank you so much, Rashi. Arohi, you're next. So if you're young and you have just started now, कि एक थिंग हो गया कि तुम बार बार पहले पहले मैचेस हारोगे या फिर स्ट्रगल करोगे नए नए स्ट्रोक सीखते और ये सब, आई वांट यू टू थिंक कि ये सिर्फ सक्सेस का लाइक एक सीढ़ी है. तुम अभी ही फेल नहीं हुए हो. और स्टार्टिंग से ही तुम्हारा एटीट्यूड तुम अच्छा रखना कि लाइक कोई भी छोटे अपोनेंट को देखकर या फिर बिगिनर को देखकर ओवर कॉन्फिडेंट मत होना या फिर एकदम अच्छे प्लेयर को देखकर गिव अप मत कर देना. And be disciplined from the start. And I would like to tell the parents that be patient, motivate your child. क्योंकि जो आज जीत रहे हैं ना, वो अभी ऐसे ही कल खेलना नहीं शुरू किया है. उनका मेहनत, उनका लाइक लाइफ, कितने साल उन्होंने क्या प्रैक्टिस किया है, हमने वो नहीं देखा है. हम सिर्फ जीत देख रहे हैं. Your child can also do it, but you should be patient and always support them. Thank you for sharing, Arohi. So today's conversation reminded us that behind every jersey is discipline, sacrifice, courage, family support, and a dream that refuses to give up. Thank you so much to our wonderful guests, Rashi, Arohi, and Sehaj, for inspiring all of us today. And to every student and parent watching, success is not built overnight. Champions are made through consistency, resilience, and support. Thank you, everyone, for joining us. So thank you, dear coaches, dear parents, dear students who have joined us today. It was our pleasure to host this event and host. And thank you so much to each of the guests here, Rashi, Arohi, Sehaj. You have made the conversation so beautiful with your inputs, with your anecdotes, and I'm sure it must have added a lot of value to each one present here. You can see in the chat box, you have got a lot of blessings. I would love to, if there is anyone present in the audience who wants to say something or share their feedback or want to, speak something to our dear guests, I welcome you.
We can look at the chat box. We have such very nice. Thank you to each one of the participant here who has given some their blessings and best wishes to all our young sports people here. Okay, at this note, Divya this side. Megha, can I say something? yeah, I love the confidence of every kid. Thank you so much, Payal, Megha, for doing what you are doing. Simona, I can see you. All of you are super confident and amazing. The way you spoke with clarity, the way you just expressed yourself, it's beautiful. And I'm sure everyone here is so inspired. I'm so inspired. So, thank you so much, each one of you. It was a beautiful discussion, and the way you navigated, Jivika, you have done a fantastic job, I must say. thank you, Devna. Thank you for your kind words. Thank you for coming up and sharing your you made our day and each one's day here. Thank you so much, Devna. At this note, I'll bring today's meeting to an end. Look forward to our next presentation that is going to happen on Thursday. Stay tuned in the group from where you got this link today. We'll be sharing more updates about our Enlightening Teen Talks going forward. Bye Thank for you, ma'am. now. Yeah, Thank you, ma'am. thank you. Lovely Thank you. children, lovely spirit. Very nice. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, Surinder sir, ma'am. Thank you, everyone. I'll end the meeting right now. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, Thank ma'am. you. Thank you, Rashi, Arohi, Thank you, Sahaj, ma'am. and Jivika, of course. Our host, Yes, our our host. Sutradhar. Thank you.